صوفی کا تعلق عربی لفظ صفا سے ہے، جس کے معنی خالص کے ہیں۔ صف کا مطلب سلسلہ، مرتبہ یا مقام و ترتیب، اور صوف سے مراد اون ہے۔ صوفی اپنی تعلیمات، گفتگو اور لفاظی سے نہیں بلکہ اپنے عمل اور کردار سے متاثر کرتا ہے۔ تصوف کی اصل کا سلسلہ تو خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے، لیکن 8ویں صدی عیسوی کے اختتام تک تصوف میں ایک نیا ارتقا رونما ہونا شروع ہوا، اور اس تبدیلی کا سبب یونانی، ایرانی، ویدانتی اور یورپی اثرات بنے۔ بر صغیر میں عوام الناس کی فکر کو متاثر کرنے والے عظیم صوفی حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 1039 میں ہندوستان آئے اور لاہور کو اپنا مسکن بنایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ 1173 میں ملتان کے قصبے کھوتوال میں پیدا ہوئے۔ آپ کا مزار پاک پتن میں ہے۔ حضرت میاں میر کی ولادت باب الاسلام سندھ کے شہر سیلوستان میں 1550 میں ہوئی۔ آپ کا مزار لاہور چھاونی میں مرجع خاص و عام ہے۔ 16ویں صدی میں شاہ حسین، جنہیں مادھو لال حسین بھی کہا جاتا ہے، اور شیخ احمد سرہندی، جنہیں مجدد الفسانی بھی کہا جاتا ہے، ان دونوں بزرگوں نے بھی بر صغیر میں بسنے والے انسانوں کی بڑی تعداد کو متاثر کیا۔ اسی طرح خواجہ غلام فرید، شاہ عبداللطیف بھٹائی، حضرت وارث شاہ، لال شہباز قلندر، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، شاہ شمس تبریز سمیت کئی اور صوفیاء بھی ہیں جنہوں نے عوام الناس کی فکر کو متاثر کیا۔ بنیادی طور پر تصوف کے 4 سلسلے ہیں، جبکہ طریقت کے ان بڑے سلسلوں کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے ضمنی سلسلے بھی ہیں۔ پہلا سلسلہ چشتیہ، دوسرا قادریہ، تیسرا نقشبندیہ اور چوتھا سہروردیہ کہلاتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک سلسلہ نقیبی، ایک منتظم اور بہت بڑا سلسلہ ہے، اور اس سلسلے سے وابستگان دنیا کے ہر حصے سے جشن نقیبی میں شمولیت کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ 5 جنوری 1895 میں موضع بٹل شریف، تحصیل و ضلع مانسہرہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم گرامی امیر زید اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کا تعلق ایک مذہبی اور خوشحال زمیندار گھرانے سے تھا۔ حق کی تلاش میں آپ اپنے آبائی دولت قلعے کو چھوڑ کر کئی بزرگان دین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ 1935 میں آپ کوئٹے سے بریلی بھارت تشریف لے گئے اور تلاش حق کے لیے وہاں کے اولیاء کرام کے آستانوں پر بھی حاضری دی۔ آخر وہ لمحہ آن پہنچا کہ فرتے جذبات سے آنکھوں نے آنسوؤں کی مالا پرو ڈالی۔ حضرت خواجہ صوفی محمد حسن شاہ سلطان الاولیاء نے بڑھ کر آپ کو سینے سے لگایا اور بریلی میں رات کے وقت بیعت فرما کر آپ کو فیض عطا فرما دیا۔ اس دوران آپ کو اپنے مرشد سے خلافت عطا ہوئی، اور آپ نے تبلیغ دین کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز 1939 میں پہلا مرید کر کے کیا۔ سوتے بہت کم تھے، اسی لیے گوروں نے جو ایک دفعہ انگلینڈ میں گئے، انہوں نے لکھا کہ ویلکم ٹو دا مین ہو نیور سلیپس۔ 7 دن کے بعد ان کے یہ اخذ کیا کہ ویلکم ٹو دا مین۔ انہوں نے نہیں دیکھا بابا جی کو سوئے، کہ جب دیکھے کام کر رہے ہیں، جب دیکھے مخلوق کے ساتھ مصروف ہیں۔ جشن نقیبی اصل میں حضرت خواجہ خواجگان فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہے، جو ہر سال عقیدت مند انتہائی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ان کا انداز اگرچہ مختلف ہوتا ہے، مگر اپنے روحانی پیشوا کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں۔ اس عرس میں شمولیت کے لیے سارا سال تیاریاں ہوتی ہیں، اور ہر ضلعی سطح پر تمام عقیدت مند
इफ्तिताई तकरीर में हाजिर होते हैं और अकीदतमंद अपने अपने इलाकाई अंदाज में ढोल और शहनाई और अपनी अपनी लोक धुन के साथ अपने रूहानी पेशवा की हक ताला के साथ विसाल की खुशी में उस दिन की याद में जश्न मनाते हैं जिसे जश्न नकीबी कहा जाता है। अकीदतमंद अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने मुर्शद खाने के लंगर के लिए अपने सजादा नशीन के हुजूर नजराने पेश करते हैं। हम भी फ़ौज में थे और बाबा जी भी फ़ौज में थे और हमें पता लगा कि यहाँ EME में एक टेलर मास्टर हैं, वो जल्दी काम कर देते हैं। हम वहाँ गए, नाप लिया उन्होंने, वर्दी ली, इकट्ठे बैठ कर रोटी खाई, फिर मोहब्बत बढ़ती गई, ना वर्दी याद रही ना कुछ। जश्न नकीबी में शमूलियत के लिए हजारों नौ मुस्लिम और लाखों मुसलमान अकीदतमंद बशमूल मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मुल्क और बैरून मुल्क से आते हैं। ये ज़ायरीन इलाकाई बुनियाद पर अपने अपने ग्रुपों में जश्न नकीबी से कुछ दिन पहले से ही आना शुरू हो जाते हैं। 83 से लेकर अब तक तो एक बहुत बड़ा वसी सिलसिला है। हमारे यहाँ ब्रैडफोर्ड में बहुत बड़ा आस्थाना है जिसकी शुरुआत सन 84 में 3-4 बीर भाई थे हम करने वाले। एक बुनियाद रखी एक तंजीम की और हजूर से अर्ज़ की कि हजूर हम ये काम करना चाहते हैं कि नौजवानों की तंजीम फलाही तंजीम बनाना चाहते हैं। तो बाबा जी ने फरमाया कि अपनी शोहरत के लिए करते हो कि अल्लाह के लिए करते हो? तो अर्ज़ की हजूर अल्लाह के लिए। तो फिर क्यों घबराते हो जाएगा, अल्लाह अपने काम खुद करता है। हजरत ख्वाजा खाजगान फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात का महवर हमेशा तसव्वुफ़ और ज़िक्र अल्लाह ताला रहा। आप फरमाते कि रोज़ाना सुबह शाम बाकायदगी से अल्लाह ताला का जिक्र अपने अपने घरों में किया करो। ख़ास तौर पर सोमवार और जुमेरात के दिन इज्तिमाई तौर पर अपने अपने शहरों, देहातों और इलाके में अल्लाह ताला के जिक्र की महफिलें सजाया करो। सूफ़ी भी वही होगा जिसे अपने पराए, हम मज़हब गैर मज़हब सब उसे प्यार करते हैं, उसका रवैया ऐसा होगा तो उसका ज़ाहिरी बातिनी मामला इतना साफ़ होगा कि मखलूक उसे मोहब्बत करेगी। हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद अज़मतुल्लाह शाह 1 नवंबर 1945 काकुल एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हुए। आप क़िबला बाबा हुजूर से बैत हुए और बाकायदा खिलाफत व इजाज़त से भी नवाजे गए। क़िबला सज्जादा नशीन हुजूर मुफस्सिर कुरान हैं, 5 फ़िक़्हों के आलिम हैं, मगर आपने इस बारे में कभी गुरूर नहीं किया। तारीख़ आलम के अभी तक एक तालिबे इल्म होने पर फ़ख्र फरमाते हैं। 31 जनवरी 1991 को हज़रत कर्नल सूफ़ी मोहम्मद अज़मतुल्लाह शाह को जनाब साहबजादा क़ुदरतुल्लाह शाह और नामवर खुलफा और मुरीदैन की खुसूसी मुशावरत से हज़ारों खुलफा और मुरीदैन की मौजूदगी में अपना सज्जादा नशीन आस्ताने आलिया नकीबाबाद शरीफ मुकर्रर फरमाया। क़िबला बाबा हुजूर के विसाल के बाद से आज तक आप नकीबी मिशन को दिन रात एक करके इंतहाई मेहनत से चला रहे हैं। आपने क़िबला बाबा हुजूर की 27वीं मुबारक मनाने का ऐलान क़िबला बाबा हुजूर की रूहानी इजाज़त से फरमाया, जो आज तक पूरी आबोताब से मनाई जा रही है। आपके साहबजादगान हज़रत सूफ़ी मोहम्मद नकीबुर रहमान शाह और मोहम्मद असदुल्लाह शाह क़िबला सज्जादा नशीन सरकार के ज़ेर साया सिलसिला आलिया नकीबिया को अपनी शबाना रोज कोशिशों और मेहनतों से परवान चढ़ा रहे हैं। सज्जादा नशीन ने बहुत रहनुमाई फरमाई। मैंने सब कुछ जो कुछ भी सीखा या कोई तो वो तो सज्जादा नशीन जो भी बाबा जी हैं इनके थ्रू ही सीखा है मैंने। जब आप अपने शेख से मोहब्बत करेंगे तो आप उनकी शबीह को कभी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देंगे, और जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, अपने कल्ब के ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपका शेख आपके तसव्वुर में आपके सामने होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर किसी को बगैर तलब और तक़वे के खिलाफ रिस्क मिल जाए तो उसे चाहिए कि जो पास मौजूद है उसमें इससे वुसअत पैदा करे, और अगर ये रिस्क पाने वाला गनी है यानी उसको हाजत नहीं है तब भी उसको वापस ना करे, बल्कि उस शख्स को दे दे जो उससे ज्यादा जरूरतमंद है।
ख्वाजा सूफी मोहम्मद अजमतुल्लाह शाह ने भी हमेशा इन नजरानों को गरीबों और जरूरतमंदों में तकसीम करके अपने असलाफ की तालीमात को रोशन किया। लंगर की रिवायत औलिया कराम के मज़ारात पर हमेशा से रही है। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, इट खड़क के दुक्कड़ वज्जे तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर ते खा खा जावन, राजी होवे बुल्ला। सदियों पुरानी इस रिवायत को नकीबाबाद शरीफ में भी देखा जा सकता है। लंगर के लुग़वी मानी बाबरकत खाने के हैं। महबूब रूहानी पेशवा मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह के उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए लंगर का वसी इंतज़ाम किया जाता है। खेमों में कायम आबाद की गई इस बस्ती और दीगर ज़ायरीन के लिए अनवा अक़साम के खाने तैयार करने में मुरीदैन खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तमाम मुरीदैन के लिए लंगर खाना अलग से तामीर किया गया है। ज़ायरीन के लिए तन्नूर पर गर्मा गर्म रोटियां, चावल और दीगर खाने तैयार करके तवाज़ो की जाती है। गर्म तन्नूर के करीब अपने दीगर पीर भाइयों के लिए कुछ मुरीदैन पेड़े बनाते हैं तो कुछ आटा गूंथते हैं। अकीदतमंद अपने रूहानी मुर्शद के 4 रोज़ा उर्स में क़याम के दौरान न सिर्फ लंगर पकाने के इंतज़ाम में हिस्सा लेते हैं बल्कि दीगर तमाम इंतज़ामात को निपटाने में भी मदद करते हैं। लंगर की तक़सीम का काम इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में सरअंजाम दिया जाता है। उर्स मुबारक के अलावा आम दिनों में भी लंगर का ये सिलसिला 24 घंटे जारी रहता है। जश्न नकीबी के इस मौके पर लाखों वाबस्तगाने सिलसिले आलिया की दीनी और रूहानी तालीमात के लिए हज़रत ख्वाजा सूफी मोहम्मद अज़मतुल्लाह शाह साहब मुख्तलिफ दीनी मौज़ूआत और तसव्वुफ़ के दक़ीक़ निकात की तालीम व तरबियत के लिए उलमाए किराम को मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तक़ारीर के लिए दावत देते हैं ताकि हुसूल इल्म का सफ़र हमेशा जारी व सारी रहे। ये जो ईमानी रोशनियों के सिलसिले जो हैं, हमारा सबसे बड़ा पावर हाउस जो है वो मदीना मुनव्वरा के अंदर है। वो जो अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी है, रब फरमाता है कि सबसे पहले मैंने अपने नूर को पैदा किया। इस मौके पर हर साल की तरह नातिया और आरिफाना मुशायरे का भी एहतमाम किया जाता है। कहा खुदा ने मोहम्मद को सौंप कर सब कुछ, मेरे हबीब जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। इस मुशायरे में मुल्क व बैरून मुल्क से सूफी शुअरा कराम अपनी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत और जज्बात का इजहार नातिया और आरिफाना कलाम के जरिए करते हैं। The poems and the shairi in Qawwali is all about love and how to love your neighbors and whether what caste you are from or what religion you are from. कमली मुबारक की रस्म जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली मुबारक से मंसूब है। इस मौके पर वाबस्तगाने सिलसिला अपने बुजुर्गों की रिवायत को बरकरार रखते हुए इंतहाई मोहब्बत से बनाई गई काली कमली मुबारक पाकिस्तान और बैरून ममालिक के मुख्तलिफ हलकों से अपने साथ लाते हैं और कमली मुबारक की रस्म जिसमें कव्वाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली मुबारक की शान पर कलाम पढ़ते हैं और ये महफिल समा इतनी पुरकैफ होती है कि हर आशिक पर एक वजद की कैफियत तारी हो जाती है। और जब इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आतिश की शिद्दत बढ़ने लगती है तो फिर काली कमली लिए हुए उशाक की मीलों लंबी कतारें आहिस्ता आहिस्ता काली कमलियों का नजराना साहिब महफिल की खिदमत में पेश करते हैं, जैसा कि हज़रत ख्वाजा खाजगान फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद नकीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह काली कमली अपने पीरो मुर्शद की खिदमत में पेश करते थे। तमाम पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया। अब इस वक्त दुनिया में कम से कम 2.5-3 अरब मुसलमान हैं। अगर 3 अरब नहीं तो चलो 1 अरब या 2 अरब मुसलमान दुआए कनूत तो पढ़ते हैं रोज़ ना। क्या
2.5-3 अरब मुसलमानों में कोई भी नहीं है जिसकी सुनी जाए। हम कैसी कैसी हम गुजारिशें करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैका। ये तमाम गुजारिशात करने के बाद एंड में हम बोलते हैं इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ार मुल्हिक। 2.5-3 अरब मुसलमान रोज गुजारिश कर रहा होता है, क्या हमें कोई भी नहीं है जिसकी बात मानी जाए, जिसकी सुनी जाए? एक भी नहीं है। ये लम्हा फिक्रिया है मेरे लिए, आप सबके लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए। क्यों? अब ज़माने से मुसलमान पढ़ रहे हैं इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ार मुल्हिक, और अज़ाब मुसलमानों पे नाज़िल हो रहा है। उसकी वजह बताओ आपको। देखो ना, हर काम के लिए कुछ प्री कंडीशन होती हैं। हर काम के लिए कुछ प्री कंडीशन होती हैं, उसके बाद वो काम होता है। अब यहाँ पर भी इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ार मुल्हिक के लिए प्री कंडीशन लगाई हुई हैं कि ये स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 ये है। अब स्टेप 1 ये है, अल्लाहुम्मा, मेरे अल्लाह। क्या अपने आप से सवाल करो, क्या मैंने अल्लाह माना? मैं तो अपनी ख्वाहिशात का गुलाम हूँ, अपनी ख्वाहिशात को मानता हूँ। मैंने अल्लाह को कब माना है? नस्तईनु का, वाकई मैं उससे मदद मांगता हूँ, हेल्प मांगता हूँ उससे? नो। वनस्तगफिरु का, वाकई ये तमाम प्री कंडीशंस हैं बेटा। हमने ये तमाम कंडीशन फुलफिल करनी है, उसके बाद इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ार मुल्हिक बोलेंगे, बात मानी जाएगी। तमाम ज़ायरीन अपने रूहानी पेशवा को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए तकरीबन 4 दिन यहाँ क़याम फरमाते हैं और इस अहद की तजदीद करते हैं कि हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद नक़ीबुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह की दीनी और रूहानी तालीमात पर अमल पैरा होकर एक अच्छे और सच्चे मुसलमान की हैसियत से माशरे में प्यार और मोहब्बत से रहेंगे और अपने अल्लाह की मारिफत हासिल करके अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करेंगे। 2008 में मुझे बाबा हुज़ूर ने मौका दिया, अपने करीब किया और मुख्तलिफ़ इंतज़ामी अमूर जो है उसमें मौका दिया खिदमत करने का। जितने लम्हे आस्ताने पे गुज़रते थे वो दुनियादारी से दूर होते थे और जो सोच है वो उसका जो फोकस है वो बाबा हुज़ूर की तालीमात की तरफ और बाबा हुज़ूर की तरफ रहता था। तो वो चीज़, वो सुकून जो यहाँ मिलता था वो कहीं और उसमें नहीं था। पांच झंडे हैं। पहला झंडा जो है वो सब्ज़ है, उसकी निशानदेही करता है सिलसिला कादरिया। दूसरा झंडा है लाल कलर जो है, उस लाल कलर शाह शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो खलीफा अव्वल हैं हज़ूर पिरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के, तो ये उनकी निशानदेही करते हैं। जो सफ़ेद है वो कलमा शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसको वो ले जाते हैं, वो साथ मिलाते हैं, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो है। और उसके आगे है जी पीला कलर। तो पीला कलर जो है वो चिश्ती साबरी है जी, जिनके बानी हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और साबर पिया जो है उनको निशानदेही करता है। आगे जी है ब्लैक काला। काला जो है वो नक्शबंद सिलसिला है। जश्न नक़ीबी हर साल हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान फ़कीर सूफ़ी मोहम्मद नक़ीबुल्लाह शाह के विसाल के दिन उर्स के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें वाबस्तगान सिलसिला व अहले शहर क़ुसूर सजादा नशीन दरगाह शरीफ क़ीला बाबा हुजूर की सरबराही में हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर एक बहुत बड़े जुलूस की सूरत में जाते हैं और चादर पोशी अदा करते हैं और महफिल समा का भी एहतमाम किया जाता है, जिसमें ख़ास तौर पर हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब का आरिफाना कलाम पेश किया जाता है। चादर पोशी के मौके पर तमाम शहर एहतरामन इस रस्म के दौरानिए में
بند ہو جاتا ہے اور شہر کے ہزاروں لوگ اس رسم چادر پوشی میں حاضر ہوتے ہیں اور شہر میں جگہ جگہ زائرین کے لیے دودھ کی سبیلیں لگا دی جاتی ہیں۔ محبت سے سرشار عقیدت مند اپنے روحانی پیشوا کے لیے انتہائی خوبصورت کڑھائی کی ہوئی قرآنی آیات سے مزین چادریں بنوا کر لاتے ہیں۔ یہ چادریں ملک و بیرون ملک کے مختلف حصوں سے عقیدت مند ساتھ لاتے ہیں۔ میلوں لمبی عقیدت مندوں کی قطاریں آہستہ آہستہ قوالوں کے کلام کے ساتھ یہ چادریں مزار شریف پر چڑھاتے ہیں۔ سلسلہ عالیہ نقیبیہ میں یہ ایک خاص بات ہے کہ اس پہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی طواف نہیں کرے گا مزار کا، نہ کوئی سجدہ کرے گا، نہ کوئی ہاتھ چومے گا، کیونکہ بڑے بابا جی سرکار کا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کو عزت نہیں دیتی بلکہ عزت رسپیکٹ دل سے دی جاتی ہے۔ عرس مبارک کے متبرک موقع پر قرآن خوانی کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ عقیدت مند تمام سال اپنے اپنے گھروں میں بھی قرآن پڑھ کر لاتے ہیں اور ختم شریف میں پیش کرتے ہیں۔ رسم غسل مبارک اور سندل شریف مزار اقدس قبلہ بابا حضور بھی قدیم روایتی انداز میں ادا کی جاتی ہے۔ مزار شریف کو غسل مبارک خالص عرق گلاب سے دیا جاتا ہے۔ رسم سندل اور رسم مبارک کی رسم جناب سجادہ نشین ہمراہ لاکھوں عقیدت مندوں کے ادا کی جاتی ہے، جس میں غسل مبارک کے بعد مزار شریف کے تعویذ مبارک کو خاص سندل اور قیمتی عطریات سے مزین کرنے کے بعد پھر غلاف مبارک چڑھایا جاتا ہے اور پھر اس غلاف مبارک کے اوپر سجادہ نشین صاحب ایک دلکش انتہائی جاذب نظر کڑھائی کی ہوئی مخملی چادر چڑھاتے ہیں۔ رسم سندل اور غسل مبارک کے مزار اقدس کے بعد رسم قل شریف، جسے ختم خواجگان بھی کہتے ہیں، ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے فوراً بعد محفل رنگ کی رسم ادا کی جاتی ہے، جس میں محفل رنگ سے متعلق حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھا جاتا ہے اور تمام عقیدت مندوں میں ایک وجد کا عالم ہوتا ہے۔ مریدین اپنے روحانی پیشوا کے باطنی رنگ میں رنگنے کے طالب ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے محفل رنگ میں قوال اس خصوصی کلام کی انتہا تک پہنچتے ہیں، ویسے ویسے وابستگان سلسلہ عالیہ و عقیدت مندان وجد کی حالت میں جھومنے لگتے ہیں۔ کبھی یہ آنسو حزن و ملال کے آنسو ہوتے ہیں کہ حزن و ملال میں حرارت ہے، کبھی یہ ذوق و شوق کے آنسو ہوتے ہیں اور شوق بھی مزاجن گرم ہے۔ پس جب ان صفات سے متصف سما اس صاحب دل پر اثر آفریں ہو تو اس تصادم سے آنسو ٹپکنے اور بہنے لگتے ہیں۔ آخر میں جناب سجادہ نشین صاحب تمام وابستگان سلسلہ عالیہ و عقیدت مندوں کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں اور پھر تبرکات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ سجادہ نشین حضرت خواجہ صوفی محمد عظمت اللہ شاہ صاحب کی دور اندیشی و بصیرت کی بدولت روحانی تعلیم و تربیت اور تبلیغ اسلام کا مشن خدام اور خلفائے اعظام کے ذریعے ملک کے کونے کونے بشمول غیر ممالک تک بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔